हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है डोंट क्वेश्चन माय इंडियननेस, हु इज़ एन इंडियन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो है और वीडियो नॉर्थ ईस्ट होराइजन चैनल का है। भाई के वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमारा चैनल भी नया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे भी फॉलो करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। If I don't have a similar physical features like the majority population, that doesn't mean I'm not an Indian. If I don't eat and dress like the majority people, that doesn't mean I'm not an Indian. If I don't worship the gods worshipped by the majority religion, that doesn't mean I'm not an Indian. If I don't carry a red symbol on my forehead, that doesn't mean I'm not an Indian. If I don't chant out Namaste, Jai Hind, Jai Shri Ram, that doesn't mean I'm not an Indian. If I don't speak the same language as you, that doesn't mean I'm not an Indian. Don't question my Indianness. So who really is an Indian? Before we estimate who is an Indian, let's comprehend and simplify what India is. India, a land believed to be the origin of human civilization. India, well known for its spirituality and the emergence of paramount religions of the world. India, a country with distinct geographical features as diverse as its people. If you want to experience the snow and coldness, I'll take you to the North India. If you want to experience the beach and the sunset, I'll take you to the South India. If you want to experience the desert and the warmness, I'll take you to the West India. And if you want to experience the mountains, the natural beauties and the calmness, I'll take you to the East India. With each passing miles, you will see that the people's faces, their God and their culture changes in India. India has always prioritized peace, unity and oneness above everything else. But Juvenism and dirty politics has injected anti-social elements and communalisms into the heart of India. Despite of being the largest democracy in the world, the citizens being protected by the sacred fabric of constitution, still the communal division and hatred finds its way to infiltrate the land of diversity. This is not an India that our freedom fighters and constitution makers left us with. Where are we heading with this insidious propaganda? Is India only for the rich? Is India only for the Aryan or Dravidian race? Is India only for the Hindus or the Muslims? Stop acting and discriminating like you own the country. If we date back to the history of India, the question who really is a true Indian is a contradictory. But one thing that I'm sure is, if you feel the warm embrace of the diversity of India, if you feel connected and at home, if you have the citizenship, then I believe you are an Indian. If you are an ardent believer of peaceful coexistence, regardless of the caste, sex, race or religion, then you are a true Indian. True Indian is gregarious, amiable and dexterous by nature.
I am a true Indian. जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो था और आज का टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया। नॉर्थ ईस्ट होराइजन चैनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं, इस देश में क्या आप अमेरिका चले जाए या फिर यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका, कहीं पे भी चले जाए, हर देश में, हर गांव में, हर सिटी में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे और वो खुद को बहुत ग्रेट समझते, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कौन ट्रू इंडियन है जिसके सामने जय हिंद कहा जाए, जिसके सामने हमारा जन गण पढ़ा जाए और उसके पूरे बॉडी पे रोंगटे खड़े हो जाए, अपने देश की वीर गाथाओं की जब कहानी सुने और उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाए, उस प्राउड फील करे, वो इंडियन है। और इस देश का जो हर नागरिक है, इस देश का हर सिटीज़न है, वो अपने देश से उतना ही प्यार करता है, इस देश से उतना ही प्यार करता है जो इस देश का साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहीं का भी रहने वाला हो। जब उसके सामने मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें होती है तो उसके बॉडी पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपनी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। किसी के सर्टिफिकेट बांटने से, नेशनलिटी का या ना बांटने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा बोलता है तो उसकी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं हो, उसको उसी जगह पे टाइट रिप्लाई देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ कोरोना टाइम में या फिर उसके पहले भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कहीं दिल्ली या फिर उधर बेंगलुरु में कुछ बहुत गलत घटनाएं हुई। मैंने वो वीडियो भी देखे। पर यहाँ पे एक बात बहुत देखने लायक है कि ज़्यादातर लोग थे सपोर्ट में आ गए उनके, और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सभी जगह पे ऐसे देखा जाता है। कुछ जो मैंने अभी बोला कि बैड मेंटेलिटी वाले लोग हैं, उनकी सोच बहुत गंदी होती है, गंदे नाले की तरह, और वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। आप कमेंट्स में भी जाएंगे तो उनके कमेंट्स कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं होंगे, वो इंडिया के अपोजिट ही कमेंट्स करेंगे। वही मेंटेलिटी वाले लोग हैं और वो जानबूझ में आग में घी डालने का काम करते हैं, आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं, क्योंकि उनको डिवाइड ही करना है हमको, तो वो सोच ही वही रखते हैं और इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वो हमें किसी और कंट्री की नेशनलिटी देते हैं तो हम भी उनको किसी और कंट्री की नेशनलिटी दे सकते हैं, पाकिस्तानी बना सकते हैं या फिर अफ़गानी बना दे या फिर टेररिस्ट बना दे, कोई बात नहीं है। वो हमको नेशनलिटी दे रहे, या फिर कभी उन्होंने अपना सिटी छोड़ के कहीं दूसरा एरिया देखा ही नहीं होता है, शायद इस वजह से उनकी मेंटलिटी इतनी और उनका आईक्यू इतना छोटा या कम रह जाता है, इस वजह से ऐसा होता होगा। बात बहुत सीधी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम इस वजह से स्ट्रांग है और हमारी पहचान ही यही है कि हम इतने डाइवर्स है फिर भी हम एक है। अंग्रेज़ जब छोड़ के जा रहे थे, ब्रिटिश जब इस देश को छोड़ के जा रहे थे तो वो बोल के गए थे कि ये देश 5 साल भी नहीं चलेगा, पर आज इतने साल हो गए, 75 साल, 80 साल हो रहे हैं, फिर भी हम एक है। और हम कितनी पीढ़ियाँ आएंगे फिर भी हम एक ही रहेंगे, क्योंकि इस देश की रचना वैसी हुई है। हमारी कल्चर में एकता है, हमारा सोच में एकता है हमारी, इसलिए हम एक है। और हम इस देश में हर जो नागरिक है वो इस देश से प्यार करता है, इंडिया से प्यार करता है, भारत से प्यार करता है, इसलिए हम एक है। चाहे आप महाराष्ट्रियन हो, चाहे आप नागालैंड से हो, चाहे आप मिज़ोरम से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, या फिर तमिलनाडु, केरल से हो, या चाहे आप इस देश के किसी भी एरिया से हो, जब देश की बात आती है और जब देश पे सवाल उठता है तो इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता है। यही हमारी ताकत है और यही हमें बनाए रखनी है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ब्रेन वॉश हो चुके हैं और उनके सामने आप जब कुछ कहना चाहते हैं तो वो इस देश को गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। शायद उनको कभी चाइना जैसे कंट्री में या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री में घुमा के लेके आना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि आप जो गालियाँ इस देश में खड़े होकर इस देश को देते हैं, यही गालियाँ अगर आप पाकिस्तान में शायद दे दे, या फिर आप चाइना में दे दे, नॉर्थ कोरिया में दे दे, या फिर इवन आप अमेरिका में भी जाके दे दे, तो आपके साथ क्या सलूक होगा आप सोच भी नहीं सकेंगे। शायद आप जब वहाँ से वापस निकले, शायद आप नॉर्थ कोरिया और चाइना में दे
तो आपका आता पता भी ना लगे, पाकिस्तान में भी दे तो आपका आता पता भी आपके घर वालों को भी कभी ना लगे। यही हमारी खूबी है। आप इस देश में रह के इस देश के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते, वो भी उनको ट्विटर पे टैग करके देते कई लोग तो, और क्या क्या नहीं बोलते। यही आप किसी और कंट्री में बोल सकते हैं। आप इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, इस देश में इतने राइट्स मिलते हैं लोगों को, इतने राइट्स तो इस दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं मिलते। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको ये आज़ादी पसंद नहीं है, उनको डिक्टेटरशिप चाहिए इस देश में, उनको डिक्टेटरशिप पसंद है। उनको चाहिए कि लोग एक दूसरे को गोलियां मारे, और जैसा हाल अफ़गानिस्तान का हुआ है या फिर जैसा ईरान का हुआ है, इतने ईरान में आज़ादी थी और ईरान आज क्या बन चुका है पूरी दुनिया जानती है। तो इस वजह से ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, उनको कॉर्नर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको फोकस में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनको ज़्यादा भाव देते हैं या फिर उनको गालियाँ दे के भी उनको फेमस करते हैं, तो उनको वही चाहिए होता है कि उनको कोई गाली दे या फिर उनको लाइमलाइट में आने का कोई चांस मिले। इस वजह से इन लोगों को वही उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो सिटीज़नशिप देते तो वही डायरेक्ट उनको सिटीज़नशिप दी जाए। और कुछ बोलने का अभी बहुत मन हो रहा है पर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गाली निकल रही थी। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं इस बारे में, पर अभी लाइफ में बहुत सारे चांस आएंगे इन लोगों की निकालने के लिए, तो और भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे भी है, वहाँ पे फॉलो करना ना भूले, और जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। जय हिंद।